اگر یک قطرہ خونداری، اگر مشتے پریداری، بیامن بات تو آموزم طریق شاہ بازی را۔ اگر تمہارے اندر خون کا ایک قطرہ ہے اور مٹھی بھر پر ہیں تو میرے پاس آؤ، میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ شاہ بازی کا طریق کیا ہے۔ If you have a drop of blood and a handful of feathers, come and let me teach you how to rise high. دنیا داری تو چلتی رہتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم سب لوگوں کو کوئی ایسا وقت نکالنا چاہیے جو صرف اللہ کے لیے ہو۔ تو یہ کیمپ جو ہے یہ ہمیں وہ موقع دے رہا ہے جس میں 2 دن سے صرف اللہ کی یاد کر رہی ہوں، اور سائے کی صحبت میں، اور ان کے جو فالوورز ہیں جو ان کے ایک طرح سے اولاد ہی ہے، ان کی صحبت میں ہم ذکر کرتے ہیں، ہم نعتیں پڑھتے ہیں، اور ہم بس اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ ہر چیز میں صرف اللہ ہی نظر آتا ہے، اور یہ 2 دن میرے زندگی کے میرا خیال ہے سب سے بہترین دن ہیں۔ شاید یہ دن مجھے نہ ملتے اگر میں ہمت کر کے یہاں نہ پہنچتی، اور میں یہ بھی سوچ رہی ہوں کہ شاید یہ میرا بلاوا تھا، میں خود نہیں آئی۔ یہاں روح کو سکون ملتا ہے، اور سچ پوچھے تو سچی بات یہ ہے کہ اپنے اندر اترنے میں، جو مجھے اتنے سالوں سے جس سفر میں خود شناسی کے سفر میں تھا، وہ مجھے یہاں آ کے لگ رہا ہے وہ دنوں میں کٹ رہا ہے، وہ بہت جلد کٹ رہا ہے۔ ہمیں اپنے آپ تک پہنچنا ہے، اور یہ سفر ہمارا اس کیمپ میں آ کے بڑی ہی تیزی سے ماشاءاللہ ایسے ہی ہے جیسے آپ موٹر وے پہ دوڑ رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے میں واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، دل دریا سمندر۔ اس میں لکھا تھا کہ ایک عابد اگر عبادت کی غرض سے جنگل میں جا کے خیمہ نشین ہو جائے تو وہاں پہ لوگ آنا شروع ہو جائیں گے، میلے لگنا شروع ہو جائیں گے، لنگر کھل جائیں گے، اور وہ جگہ آباد ہو جائے گی۔ لاوے میری بھوک جنہ کھادی چوپڑی، جنہ کھادی چوپڑی او گھڑے سہن گے دکھ۔ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت کچھ جو میں نے وہاں نیچے جا کے وہاں پہ لوگوں سے سنا تھا، یہاں میں نے پریکٹیکلی وہ دیکھا ہے، تو بڑا زبردست ایکسپیرینس رہا ہے۔ جو میں بچپن میں تھا ایک بچے کی طرح ہر چیز کو آبزرو کرتا تھا، قریب سے دیکھتا تھا، وہ آج میں نے ابھی جا کے 20 25 26 سال بعد میں نے وہ چیز یہاں پہ ایکسپیرینس کی ہے۔ تو آیا میں پہلی دفعہ ہوں، اور شاید جا یہاں سے اب بہت مشکل سے سکوں، اور انشاءاللہ دعا اب یہی ہے کہ سرکار کے ساتھ ساتھ ان سے رہنمائی لیتے ہوئے اپنی زندگی گزاروں، اور ایک اچھا انسان اور اچھا مسلمان بنوں۔ یہاں پر ابھی بھی سب بہت ہیپی سولز موجود ہیں میرے ارد گرد، اور یہ سب صرف ایک فورس ہے جس نے ان کو جوڑا ہوا ہے، اور وہ محبت ہے، اور جس کی وجہ سے یہ خوشی یہاں پر مل رہی ہے۔ یہ محبت صاحبزادہ عاصم ماروی کے تھرو پہنچے، یا ان کے جیسے اور ان کے رفقا کے تھرو، تو یہ ہم سب تک پہنچ رہی ہے۔ ہم سب اسی کو کنیکشن سے یہاں جڑے ہوئے ہیں۔ جب کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں ایک قدرت کا دیا ہوا اتنا خوبصورت انوائرمنٹ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ وہاں موجود ہوں وہ سب ایک دوسرے کی رسپیکٹ اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے جذبے کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں، تو یقین جانیے یہ سب کا سب ایک ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی اور ہی دنیا میں آ گئے ہیں۔ سفر میں اندرونی اور بیرونی مراتب طے پاتے ہیں۔ شطرنج کا پیادہ 6 منزل طے کرنے کے بعد پھر زین کے درجے کو پہنچتا ہے، اور چاند 14 روز میں مکمل ہوتا ہے۔ جو لوگ گھروں میں ہی بیٹھے رہتے ہیں اور پاؤں تک باہر نہیں نکالتے، وہ دنیا کے عجائبات اور تماشے دیکھنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ بعض کی جگہ بادشاہ کے ہاتھ پر اس لیے ہے کہ وہ گھونسلہ نہیں بناتا، اور پانی ایک ہی جگہ ٹھہر جائے تو بدبودار ہو جاتا ہے۔ مرابط کیمپ
एक बहाव का नाम है, ये शहबाजों का तरीक है। कि आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाते हैं, आप अपने सेल्फ को एक्सप्लोर करते हैं। वो पंजाबी की कहावत है ना कि अपने अंदर जाती पाने आ, सो अपना पता चलता है और हमारी बुक्कल दे विच जेड़ा चोर छुपया है उसका पता चलता है। खुशी महसूस हुई है, सुकून मिला है। फिर ज़िक्र अज़कार की जो महफ़िल है, ये मैंने कम आस्थानों पे, खानकाही निज़ामों पे कम देखा है, तो ये इनकी कोशिश बहुत अच्छी है। फिर पाबंदी नहीं है, कोई जबर नहीं है, फ़िक्री आज़ादी और फ़िज़िकली आज़ादी, तो अल्हम्दुलिल्लाह लंगर का एहतमाम, रिहाइश का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब चीज़ें ऐसा ही लगता है कि ये खुदाई प्रोग्राम है, खुदा के लिए किया जा रहा है और अल्लाह के दीन के लिए किया जा रहा है, इंसानियत की बुनियाद पर किया जा रहा है। ये मत सोचें कि आप वही हैं जो कि आप हैं, आप इससे बहुत बढ़कर हैं। आपके अंदर एक अजीम सलाहियत मौजूद है, एक ऐसी सलाहियत जिससे आप बेखबर हैं। आपकी ये सलाहियत और आपका ये पोटेंशियल कभी भी ख़त्म ना होने वाला है। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अंदर से जानी जा सकती हैं। अगर आप ये फ़ैसला करते हैं कि आप पहले मोहब्बत को जानेंगे और फिर उसके जानने के बाद इसमें मुब्तला होंगे, या आप इसके मानी समझने के बाद इसके अंदर गिरफ़्तार होंगे, तो यकीन मानिए कि आप कभी भी मोहब्बत में मुब्तला नहीं हो सकते। मोहब्बत के बारे में जानने के लिए माँ सिवाय इसके कोई तरीका नहीं कि आपको मोहब्बत में गिरफ्तार होना पड़ेगा। आप लाइब्रेरियों में जा सकते हैं, आप मोहब्बत के ऊपर लिखी गई अनगिनत हज़ारों किताबों में से रिसर्च करके शायद पीएचडी का कोई मकाला तो लिख लें, मगर ये इस बात की कोई ज़मानत नहीं कि आप मोहब्बत भी करने लगेंगे। खादी चोपड़ी ओ गणे सहणगे दुख, गणे सहणगे दुख फरीदा, गणे सहणगे दुख। एक अजीब सी कैफियत में है और दिल करता है इस कैफियत से अब वापस ना निकले, लेकिन मजबूरी है, जाना पड़ेगा। और लेकिन साथ में इस ख्वाहिश के साथ कि दोबारा आएंगे। तो बहुत ही इंजॉय किया, बड़ा लुत्फ़ महसूस हुआ, बहुत सुकून मिला और बहुत ज़िक्र अस्कार के जो सर्कल्स थे उनमें बैठने का मौका मिला। प्यूरिफिकेशन का एक प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है, बैठते हैं, ज़िक्र होता है, लंगर चल रहा होता है, खिदमत का मौका मिलता है, अपने आप को अपने अंदर जाने का मौका मिलता है, अपने आप को पढ़ने का मौका मिलता है। और यही बुल्ले शाह कहते थे, कभी अपने अंदर वड़िया नहीं। तो वो एक चांस हमें साईं के तवस्सुत से मिल गया। कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया, मुझे आकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें कोई 6-7 दिन मैंने गुजारे, डिफरेंट चीज़ें सीखी, योगा था, ज़िक्र था, और पाकिस्तान के चारों सूबों से मुख्तलिफ जो लोग आए हुए थे उनसे मुलाकात का मौका मिला। हुस्न ये जो सालिकीन हैं चारों सूबों के, इनके अपने एक्सपीरियंसेस को सुना, और यहाँ पर एक बिल्कुल वाइल्ड इन्वायरमेंट में रहकर इस तरह का ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा भी। हालांकि मैं मतलब मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में विज़िट किए हुए हैं, 20-25 मुल्कों में गया हूँ, मगर जो सुकून और जो रूहानियत मुझे यहाँ फील हुई है, आई हैव नो वर्ड्स। मेरे पास कोई ऐसे अल्फाज नहीं कि मैं इनको मुकम्मल तौर पे कोई बयान कर सकूँ। ये एक एक्सपीरियंस की चीज़ थी मेरे लिए। याद रखिए कि ईमान का ताल्लुक़ इकरार बिल लिसान और इकरार बिल कल्ब से है, न कि दिमाग से है। आप देखिए कि आपका दिमाग किस तरह से काम करता है, और जिस हालत में आप इस दिमाग को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो एक पागल खाना है जिसमें 1001 सोच है, बहुत सा शोर है, हसद है, कीना है, गुस्सा है, तशद्दुद है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है।
तमाम की तमाम फजूलियात हैं। इसमें बेशकीमत क्या है, इसमें प्रीशियस क्या है? आपको बताया गया है, सिखाया गया है कि आपके जिस्म में सबसे कीमती पुर्जा आपका दिमाग है। मगर ये बताया किसने है? खुद इसी दिमाग ने ही बताया है। आप एक ऐसे दिमाग में मुक़य्यद हैं कि जो अपनी तारीफ़ पर खुश होता है और अपनी तनकीद जिसे बर्दाश्त नहीं, जो सिर्फ़ उन चीज़ों से चिमटा हुआ है जो इस माशरे ने और इस तालीमी निज़ाम ने आपको सिखाई और बतलाई हैं, और जिसके बार बार रिपीट होने से, बार बार दोहराए जाने से आपका दिमाग ये समझ रहा है कि ये उसका हासिल करदा इल्म है। मालूमात कभी भी इल्म नहीं होती। सही का रंग मोहब्बत का रंग, ओरिजिनलिटी का रंग, नए जन्म का रंग। सही फरमाते हैं कि नए होके जाओ, अपने दिन को नया गुजारो, नए एहसास के साथ जाओ, और यहाँ से इस कैंप से अपने एहसासात में वो तब्दीली लेके जाओ कि जब अपने घर में जाएं, अपने बाल बच्चों में जाएं, अपने रोज़गार में जाएं, तो आप बदले बदले से नज़र आएँ। आपके फीलिंग्स के अंदर डेप्थ हो, एहसासात प्योरीफाई हों। तो ये जो सन बन में जो एक रौनक लगाई, वो जो अल्लामा इकबाल ने कहा था, उसने फितरत को अपनी बेनकाबी के लिए हों अगर शहरों से बन प्यारे तो शहर अच्छे के बन। इस बन में जो मैंने सीखा, जो मेरे दिल में ख्याल आया कि अपने आप को प्योरीफाई किया जाए, ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट पैदा की जाए, सुपरफिशियलनेस से निकला जाए। बाकी दुकानें तो बेशुमार हैं, अंदाज़ बेशुमार हैं, सतहें बेशुमार हैं। हमें इस रंग में जो चिश्ती रंग है, सही का रंग है, हमें अल्लाह पाक इस रंग में रंग दे, और हमारे ऊपर और जो भी तरबियत ले गए हैं दोस्त अहबाब सब के ऊपर अपना फजल व करम इस तरह से फरमाए कि अल्लाह पाक हम पे और हमारी नस्लों पे हमेशा राज़ी रहे। जूदिया पैरां तले, जूदिया पैरां तले। याद रखें कि आप असली फूल हैं और शाम होने वाली है। आपने भी अपने से पहले आने वाले फूलों की तरह मुरझा जाना है, मगर शाम होने से पहले, झड़ने से पहले यूं खिलें कि जब आप झड़ें तो ये हवा आपको अपने संग उड़ाकर एक ऐसे बाग में ले जाए जहाँ कभी शाम नहीं होती, जहाँ कभी खिज़ां नहीं होती, जहाँ कभी कोई फूल नहीं मुरझाता।